important that whatever are the elements of the environment, like you can say air, water, earth, they should be saved, and we should try to conserve resources and the existing materials nature has given us. Okay, so when we want to say that we'll practice green architecture, it actually means that we have to safeguard Earth's resources. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, basically, when you talk, you cannot isolate interior and architecture. Both have to go together. Okay. अब जब हम एक इंटीरियर डिजाइन करते हैं, so it is very important that you should see जब आप इंटीरियर स्पेस करेंगे तो उसमें आप एसी भी देखेंगे, उसमें आप इलेक्ट्रिकल भी देखेंगे, उसमें आप प्लम्बिंग भी देखेंगे, उसमें आप लाइटिंग एंड वेंटिलेशन को भी फोकस करेंगे एंड वाटर कंजर्वेशन का भी पार्ट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन बिल्डिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें एक एफिशिएंट एसी का हीटिंग एंड कूलिंग मेथोडोलॉजी अपनाएं. जैसे होता है कि एसीज दे कैन बी, you can use various types of air conditioners. It can be a window AC, it can be a split AC, it can be a tower AC, or you can even use a ductable split, or you can even use a VRV system. So what happens is, it is very important that the ventilation systems in air conditioning, they have to be energy efficient. So जब हम energy efficiency की बात करते हैं, ultimately it is consuming electricity, and we need to ensure that interiors में we use efficient lighting techniques. Efficient lighting का मतलब ये है कि अगर आपका एक lux level, suppose एक reading area के लिए if you want a 400 lux level in a room, it should be 400 only. Okay, वो 400 आप natural sunlight से भी दे सकते हो या फिर आप 8 बल्ब जला के दे सकते हो. So it is good for an interior designer कि आप उस natural lighting को accept करो, and you have to create good ventilated spaces in your interiors. Okay, when it comes to resources, उसमें water एक बहुत बड़ा resource है. water के लिए आज के डेट में बहुत सारे sensors आ गए हैं, fixtures आ गए हैं, जो dual flush system हो गए या sensors हो गए, which can actually save and help water. drip irrigation system है. So there are systems in which interiors में आप ऐसे fittings use कर सकते हो जिसमें आप energy और वाटर को कंजर्व करेंगे. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, द क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स एंड द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड द you can say the name of the basically the species of plants that you use for your landscape outdoor area and for the indoor area, that should be according to the environment. See, these things are integrated. So when we talk about interior design, it is basically an integrated design in which you focus on exteriors also, the plantation also, the indoor plantation also, and the interiors also. Okay, and one thing, see, for example, if you want to design an interior space, okay, and sometimes, or a landscape garden, and if there is a tree in the garden, and there are so many species residing in that tree only, कोई squirrel रह रही होगी, कोई हो सकता है कोई बर्ड्स आती होंगी, 5, 10, 15 टाइप की एंट्स रह रही होंगी, हो सकता है कोई स्नेक का वो हैबिटेट हो. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रीन आर्किटेक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट हार्म द हैबिटेट ऑफ नेचुरल स्पीशीज. ओके, एंड व्हाट इज मोर important is you should use non-conventional sources of energy. When we talk about non-conventional sources, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि you do not have to use those resources जिसको produce करने के लिए आपको मेहनत लगी हो या energy लगी हो. So what is important is solar, जैसे for example solar energy. Solar energy जो है वो solar panels में it can easily be converted into photovoltaic cells, and it can be converted into electricity. So we should ideally be using solar power. Okay, see, that day also I gave you some examples. In fact, you have a pen and a pencil in your hand. Yes, ma'am. Yes, Kishan, you also. Yes, ma'am. Okay, so note down करो, दो बिल्डिंग्स का नाम नोट डाउन करो, 2-3 बिल्डिंग्स का. सबसे पहले आप नोट डाउन करो इंदिरा पर्यावरण भवन. दिस इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग. हाँ मैम, वो तो कर चुके हैं. Okay. No, basically I want to tell you something regarding this. Indira Paryavan Bhavan है. This is in Lodi Road. This is a government building. कट रही है बीच में. Okay. It's okay थोड़ा for सा me, select ma'am. Okay. It's देखो very कोई बात clear नहीं. to me. अब ये
ओके It's in थोड़ा सा है आज मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यूज. एनीवेज, व्हाट इज हैपनिंग इज इंदिरा पर्यावरण भवन जो है ना, वो एक बेसिकली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, एनर्जी रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है. एंड दैट बिल्डिंग इज इन लोधी रोड, दिल्ली में है. एंड दैट बिल्डिंग इज अ इट इज अ, देखो आई टेल यू समथिंग कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हो, आपका 10th और 12th का जो एग्जाम है वो स्कूल नहीं ले रहा, वो एक सीबीएसई बोर्ड ले रहा है. ठीक है, सीबीएसई आपके रेटिंग करता है कि आप इस, आपके 80% है, आपके 40% है, आपके 30% है, आपके 90% है. सिमिलरली जैसे सीबीएसई जो है वो एक गाइडलाइन दे देता है स्कूल को कि आपने ये कोर्स पढ़ना है, ये टॉपिक्स हैं, इसमें से एग्जाम आएगा, और फिर उसके बाद वो एग्जाम लेके रेटिंग करता है. सिमिलरली बिल्डिंग्स में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लीड कह लो आप, लीड LEED. किशन आप जरा नोट करिए. yes ठीक ma'am है, lead. LEED. और एक ऑर्गेनाइजेशन नोट करो, गृहा. ठीक है, ये दोनों एक तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का काम करते हैं. ठीक है, ये एक तरह से बोर्ड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या करते हैं कि दे गिव यू रेटिंग. कोई भी आप इंटीरियर स्पेस बनाते हो या एक्सटीरियर की कोई बिल्डिंग बनाते हो, तो अगर आप चाहो तो अपनी बिल्डिंग को इनसे इवेल्युएट करवा के आप अपनी रेटिंग ले सकते हो. एंड ऑब्वियसली उसका फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है, एंड इट gives you a good name and fame also. Okay, अब ये करते One क्या है, is जैसे lead, गृहा है, second one sorry गृहा, जी हाँ. Griha. GRIHA, ये सारे कैपिटल लेटर्स में है. गृहा का मतलब है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब ये आप समझ लो, ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है जैसे. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको नंबर देंगे. इनके पास एक एग्जाम की तरह एक पूरा फॉर्मेट होगा. वो कहेंगे कि आपका वाटर कंजर्वेशन के इतने पॉइंट्स हैं, आपने कितने स्कोर करे. एनर्जी कंजर्वेशन के इतने पॉइंट्स हम आपको दे सकते हैं, 10 पॉइंट्स, आपने अपनी बिल्डिंग में 2 स्कोर करे. आपने लैंडस्केप में ये स्कोर कर सकते थे 4 नंबर, आपने स्कोर 1 भी नहीं करा. तो एक तरह से आपकी टोटल बिल्डिंग की वो एग्जाम, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जाम लेते लेते वो आपको एक स्कोरिंग रेट और नंबर दे देंगे. गृहा जो है वो स्टार्स में बात करते हैं, वो अपनी रेटिंग को इस तरह से करते हैं कि 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार एंड सर्टिफाइड. ओके, और जो लीड है, लीड एक्चुअली यूएस में स्टार्ट हुआ था, तो लीड यूएस से ही स्टार्ट हुआ था, फिर इंडिया वालों ने अपना अलग लीड बना लिया, तो अब लीड इंडिया बोलते हैं उसको. और लीड इंडिया की रेटिंग जो है वो इस तरह से है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम या सर्टिफाइड. ठीक है, सिमिलरली इंटीरियर्स में भी ऐसे ही है. तो ये क्या करते हैं, स्कोरिंग देते हैं आपको, एंड यू कैन एक्चुअली, आप एक सर्टिफिकेट है, एक बिल्डिंग को सर्टिफिकेट मिल जाता है. तो ये जो इंदिरा पर्यावरण भवन की जो बिल्डिंग है, उसके पास एक सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप वहां जाके विजिट करोगे तो यू विल सी उसकी जो नेम प्लेट है उसमें भी लिखा हुआ है, इट इज अ 5 स्टार गृहा रेटेड बिल्डिंग. ओके, गृहा वालों ने उसको 5 स्टार दिए कि इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती. सिमिलरली लीड इंडिया वालों की भी वो प्लैटिनम रेटिंग बिल्डिंग है, प्लैटिनम इज टू हाई. ओके, अब एक बिल्डिंग आप और नोट करो, CII गोदरेज, गोदरेज भवन, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, या ऐसे नोट कर लो आप. एंड दिस इज इन हैदराबाद. अब ये जो CII की बिल्डिंग है, ये हमारी इंडिया की गृहा, इंडिया की एक तरह से गृहा ने जिसको 5 स्टार दिया, और लीड ने भी जिसको प्लैटिनम रेटिंग दी, वो हमारी इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग है, CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर. ठीक है, अब ये जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, इसको, इसका इंटीरियर ले लो या इसका एक्सटीरियर ले लो, दोनों इतने अच्छे सर्टिफाइड हैं कि उसमें सारी जो हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, या जो रिसोर्सेस को सेव करने की बात करते हैं, या जो हम अर्थ को सेव करने की बात करते हैं, वो सारा का सारा इसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है, अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट पावर सोर्सेस की. ऑल्टरनेट पावर सोर्सेस का मतलब सोलर एनर्जी के, जैसे ये वाली दोनों बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि ये बाहर से, जैसे अब हम लोग बिजली के लिए डिपेंडेंट है, BSES पे या जल बोर्ड पे डिपेंडेंट है. सो दीज 2 बिल्डिंग्स, जल बोर्ड से भी ये 50% कंजम्पशन ले रही हैं, जो एक्चुअली लेना चाहिए इनको, और एनर्जी, बिजली वाले ऑफिस से इनका कोई काम नहीं है, बिकॉज दे आर जनरेटिंग देयर ओन पावर. ओके, वो पावर विंड पावर भी हो सकती है, सोलर पावर भी हो सकती है, हाइडल पावर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है.
बट हम आज की डेट में वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, नॉन कन्वेंशनल का मतलब थोड़ा हटके. जैसे एक और बिल्डिंग है, इफ आई टेल यू, there is a building in Pune which is by the name of Suzlon. Okay, SUZLON. आप चेक कर सकते हो गूगल पे. सुजलॉन की जो बिल्डिंग है वो अपनी पावर खुद जनरेट करती है बाय द यूज ऑफ विंड मिल्स. ओके, सुजलॉन में सारी उनका अपना, सुजलॉन वालों का पूना में नहीं है बट थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, कोस्टल एरिया में उन्होंने अपनी 100 जितनी विंड मिल्स लगा रखी हैं और उसी से फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. विंड पावर को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर करते हैं एंड देन दे रन देयर ऑफिस इन पूना, सुजलॉन का. एंड सुजलॉन जो है वो एक तरह से ग्लोबल कंपनी है. ये पूरा वर्क कर रही है एनर्जी कंजर्वेशन पे. ओके, तो आज के टाइम में अगर आप एक बिल्डिंग बनाते भी हो तो उसकी रेटिंग इंप्रूव करने के लिए या इंटीरियर्स भी करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ग्रीन की तरफ मोल्ड करो. आप एनवायरनमेंट को सेव करने की बातें करोगे. ठीक है, अब जैसे छोटी सी अगर एक बात है, एक आपने इंटीरियर स्पेस के अंदर अगर आपने पेंट ही करना है, सो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जैसे एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर्स क्या करते हैं, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में. Okay, so what is important is you should not use those substances which increase the carbon content in the atmosphere. Okay, कई बार ऐसा होता है कि जैसे HCFC कार्बन्स या CFC कार्बन्स, CFC means chlorofluorocarbons and HCFC कार्बन्स means hydrochlorofluorocarbons. ये कार्बन कंटेंट इंक्रीज होने से एटमॉस्फेयर में होता ये है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर के अराउंड एक ओजोन की लेयर है पूरी, जो हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसको वो स्टॉप करता है. ठीक है, उसमें ओजोन में ओजोन लेयर के अंदर होल्स हो गए हैं एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन सन की अर्थ के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं एंड इट इज कॉजिंग वेरियस डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारी प्लांट्स को डिजीजेस हो रही हैं, एनिमल्स को डिजीजेस हो रही है, ह्यूमन बींग्स आर सफरिंग, आईसाइट वीक हो रही है लोगों की, स्किन डार्कन हो रही है, कैंसर हो रहा है, इस तरह से. तो एक तरह से हम टॉक्सिक मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कई बार हम ऐसे, जैसे एयर कंडीशनर है वो भी उसकी जो गैसेस निकल रही है, रेफ्रिजरेटर, आज से 100 साल पहले फ्रिज नहीं होता था, लोग ठंडे घड़े में पानी पीते थे, मटका, दे यूज्ड टू यूज दैट मटका एंड उसमें पानी पीते थे. तो उस समय वो गैसेस नहीं निकलती थी उस मटके से, मिट्टी, आफ्टर ऑल इट इज मड ओनली. मगर आज की डेट में हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, हम कोल्ड स्टोरेज का खाना खाते हैं, सो वी नीड मोर स्टोरेज, वी नीड मोर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स. इससे क्या हो रहा है कि जो गैसेस निकल रही हैं, दे आर वोलेटाइल गैसेस, और इसमें जो CFC और HCFC का कंटेंट है वो जाके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है एंड इन द लॉन्ग रन इट इज कॉजिंग ग्रेट हार्म टू एनवायरनमेंट. ओके, और हमें लास्ट टाइम मैंने आपको एक वर्नाकुलर की क्लास ली थी तो उसमें हमने बेसिक उसका यही डिस्कस किया था कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर या वर्नाकुलर इंटीरियर का मतलब यही है कि आप यूज करेंगे वो मटेरियल्स जो आपकी साइट के नियर बाय अवेलेबल हों, जो लोकली अवेलेबल हो, और जो लोकल लेबर का मतलब जो एकदम बिल्कुल वही रहती है लेबर जिसने उस मिट्टी के साथ, जो एक तरह से यू कैन से that who has grown, the labor who has grown in that soil, you will use those people to make those houses. उस टाइम पे मैंने आपको कथकुनी आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था एंड we have actually you should actually note कि हर एरिया का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है वो डिपेंडेंट होगा जिस लोकल अवेलेबल मटेरियल है वहां पर, जो जैसे बैम्बू है या स्टोन है या स्लेट है या फिर मार्बल है, उस तरह से. सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दी ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस, कि एक जगह से 500 किलोमीटर दूर मटेरियल ना जाए, क्योंकि 500 किलोमीटर दूर मटेरियल जाने से क्या होता है कि आपका फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट में बढ़ जाता है. ठीक है, तो एक तरह से जब हम लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू सेव द एनवायरनमेंट, और जो लेबर है उसको इजीली हैंडल करना आता है मटेरियल को. ओके, सो विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं अडेप्टिव, देखो बहुत सारी बिल्डिंग्स अब एवरीवेयर, इट इज नॉट यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू बिल्डिंग. सो आज की डेट में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं. जैसे आप कई बार आप ऐसे देखोगे
कि देर आर सो मेनी बिल्डिंग्स जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो ASI ने कैप्चर करी हुई हैं, एंड नाउ दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू होटल्स एंड ऑल. ओके, दिस इज कॉल्ड Yes, सैल्वेजिंग. ma'am. सैल्वेजिंग का मतलब होता है कि आप अपनी पुरानी धरोहर को आप यूज करके आप उसको न्यू तरीके से रीयूज कर रहे हो. ओके, सो जब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की, रीयूज की, तो एक तरह से वी आर नॉट, ये नहीं हम कर रहे कि एक किला बना हुआ है महाराज का, अब ये यूज नहीं करना तो इसको तोड़ो एंड वी विल मेक अ होटल, ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब हम ग्रीन इंटीरियर्स और ग्रीन स्पेसेस की बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी शुड एक्चुअली यूज द ओल्ड मटेरियल एंड वी शुड एक्चुअली try to convert those old heritage spaces and we should adapt it to the new use. ओके, अडेप्टेशन का मतलब होता है कि पहले एक राजा का महल था, आज आपने उसका यूज चेंज करके आपने उसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया. ओके, और अ Yes, रिजॉर्ट, यू हैव ma'am. कन्वर्टेड इनटू अ रिजॉर्ट. सो दिस इज कॉल्ड सैल्वेजिंग एंड दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव रीयूज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. बहुत सारा काम हो रहा है इसके ऊपर. सो जब हम ग्रीन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम इंटीरियर्स की भी बात Okay. कर रहे हैं, तो इंटीरियर्स में आपका एक्सटर्नल शेल आएगा और साथ में आपके मटेरियल्स आएंगे. ओके, तो डेफिनेटली जो विंडो है, जैसे नंबर ऑफ विंडोज, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द रूम, मैक्सिमाइजिंग सनलाइट, मैक्सिमाइजिंग द विंड एंटरिंग द कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स. ओके, अब ये सारी चीजें क्लाइमेट पे डिपेंड करेंगी. अब आप ये देखो, अगर एक आपका शिमला में एक आपका रिजॉर्ट है, होटल है, जो फोर्ट है कोई, या कोई हेरिटेज बिल्डिंग थी ब्रिटिशर्स की बनी हुई, अब उसको कन्वर्ट करना है होटल में, और वही चीज एक बॉम्बे में है और वही चीज सिमिलर एक राजस्थान में है, तो वो तीनों के क्लाइमेट के हिसाब से आप शिमला में यू विल नॉट अलाउ वेरी कोल्ड विंड्स टू एंटर द बिल्डिंग. राजस्थान में आप चाहोगे कि Yes, विंड तो ma'am. आए बट लू के साथ आपकी ये ना आए, सैंड ना आए. ओके, सिमिलरली बॉम्बे वगैरह में यू विल नॉट, Yes, यू ma'am. कोस्टल एरिया में अगर कुछ है तो यू वुड वांट कि विंड और वेंटिलेशन होती रहे, ताकि ह्यूमिडिटी, आपकी सर्कुलेशन ऑफ एयर होता रहे, सो दैट द होल एरिया डजंट बिकम दैट ह्यूमिड. So when you talk about interiors में you just don't have to consider one factor. There are so many factors which are integrated. Okay, and this is, we are moving towards Okay, ma'am. sustainability. अब ये देखो, there are certain you can say terminologies which you should know. One is sustainable development. Sustainable development, this is on a broader level. Sustainability का Yes. मतलब ये है कि आप अपने अर्थ के रिसोर्सेज को इस तरह से यूज कर रहे हो कि यू आर यूजिंग देम आल्सो एंड यू आर एट द सेम टाइम सेविंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो. ओके, इको डिजाइन का मतलब ये Yes, है ma'am. कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज करोगे. किशन, किशन, यस मैम. आप सुन यस रहे हैं मैम, ना? सुन पा रहा समझ हूँ आ मैं. रहा है आपको? यस समझ आ मैम, रहा है? क्लियर. यस मैम, बिल्कुल. यस मैम, आई बिल्कुल. अंडरस्टैंड, थोड़ा सा न्यू है आपके लिए बट कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ना तो है. नहीं मैम, आ इको रहा है फ्रेंडली, फिर भी. ठीक ठीक है मैम. ठीक है, दैट्स गुड. सी, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आप एनवायरनमेंट को सेव करते हुए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, आप उसके रिसोर्सेज का मतलब जो गॉड ने आपको, नेचर ने सादा गिफ्ट पानी. दिया, नेचर ने आपको जो गिफ्ट दिया है, नेचर ने आपको गिफ्ट क्या दिया है? नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है वाटर, नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है एयर, नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है प्लांट्स. ये सारी चीजों को यूज करो. ऐसा नहीं कि इनको संभाल के बैठ जाओ एंड यूज नहीं करना आपने, आप इनको यूज करो बट एट द सेम टाइम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करो. ओके, सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज. जैसे नेचुरल आर्किटेक्चर है, या नेचुरल आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आप अपना नेचुरल मटेरियल्स और रिसोर्सेज से ही यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू. अब ये जो मैंने आपको दोनों बिल्डिंग्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे CII हो गया या इंदिरा पर्यावरण भवन हो गया, इसमें लैंडस्केपिंग आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, इनका लैंडस्केप का देखोगे, CII की जो बिल्डिंग थी उसमें वहां पर एक नेचुरल पॉन्ड था. ओके, पॉन्ड जो था उसमें बहुत सारी स्वैन्स थी, बहुत सारी एक्वेटिक बर्ड्स थी, फ्रॉग्स थे, छोटे छोटे वाटर स्नेक्स भी थे और फिशेस भी थे. अब सारी प्रॉब्लम ये थी कि अब वो पॉन्ड को कैसे आप रिलोकेट करोगे, तो क्योंकि पॉन्ड को जैसे ही हटाओगे उसका पानी, तो सारे एनिमल्स डेड हो जाएंगे. सो उन्होंने पॉन्ड को एज इट इज ही रहने दिया, बट उसको
उसको कन्वर्ट करा इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडी। ठीक है, उसको उन्होंने लैंडस्केप उसके अराउंड वर्क किया, एक भी चीज बाहर से नहीं आई, जो भी मलबा अवेलेबल था मलबे से उन्होंने लैंडस्केपिंग करी, जो पुरानी मोटी मोटी रॉक्स निकली, बोल्डर्स निकले, उन्हीं से उन्होंने लैंडस्केप किया। ठीक है, तो उन्होंने वही, अब आपका एज एन इंटीरियर डिजाइनर जब आप ग्रीन आर्किटेक्चर की बात करते हो या ग्रीन इंटीरियर की बात करते हो, तो जो लीड है या ये गृह ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आपको नंबर या कह लो या रेटिंग अच्छी तभी देंगे जब आप एनवायरनमेंट को मिनिमम तरीके से स्पॉइल करोगे, आप एक तरह से जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्रिएट करोगे। जीरो एनर्जी बिल्डिंग का मतलब एनवायरनमेंट से आपने कुछ लिया नहीं और ना आपने उसमें गंदगी फैलाई। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव एनर्जीज इन द एनवायरनमेंट, रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जीज इन द एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आप पोल्यूशन कॉज कर रहे हो। देखो, आपको पोल्यूशन, आपको ये सब आप बचपन से पढ़ते आए हो कि पोल्यूशन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, केमिकल पोल्यूशन हो गया, ई वेस्ट पोल्यूशन हो गया, ये जो मोबाइल फोन्स है, एवरीबडी हैज गॉट, अभी भी आज भी आप अपने 4-4 5-5 फोन वेस्ट कर चुके होगे। ठीक है ना, जो फोन आपने लिया अब वो खराब हो गया, वो एक तरह से वो डंप है, वो कभी सॉइल में मिलेगा नहीं, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो गया। जो डेस्कटॉप है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो गया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, पुराने डब्बे वाले टीवी थे, पुराने वाले स्टाइल के बॉक्स टीवीज, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो हम एक तरह से एनवायरनमेंट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना जनरेट कर चुके हैं कि वी डोंट नो वेयर टू डंप इट। यू अंडरस्टैंड, उसको हम डंप नहीं कर पा रहे, वो सॉइल में कभी मिलेगा नहीं, एंड देयर इज, वो कभी डिग्रेड नहीं होगा। डिग्रेड का मतलब वो कभी मिट्टी में 50 साल के बाद भी नहीं मिलेगा। ओके, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम विल नेवर डिग्रेड, इट विल नेवर मिक्स इन द सॉइल। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वो सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कह लो एक एनिमल है या एक बर्ड है, सपोजिंग इफ अ पिजन डाइज अंडर अ ट्री, ठीक है, वो पिजन वहीं पड़े पड़े और 5 साल के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सॉइल में मिल जाएगा। Similarly, with the health, same is with animals, same is with human body and all. But जो पेपर है जैसे, वो एक तरह से सॉइल में मिल जाएगा, बट कुछ मेटल्स हैं जो कभी डिग्रेड नहीं होंगे। सो वी हैव टू, एज एन इंटीरियर, एज अ ग्रीन इंटीरियर डिजाइनर, यू हैव टू यूज दोज मटेरियल्स जो अर्थ को हार्म ना करें और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ओके, देखो इसमें ये जो पीपीटी है, इसमें दिस इज अ पीपीटी फ्रॉम द नेट ओनली। इसमें बेसिकली बहुत क्लियर लिखा है कि ये, आई शेयर इट विथ यू। इसमें बेसिकली ये है कि लीड आपके लेवल्स देती है, सर्टिफाइड गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, और एक तरह से आप इनको अपनी बिल्डिंग को रेट करवा सकते हो। आप उनके नंबर लेके आप यू कैन ऐड पॉइंट्स टू योर बिल्डिंग। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन बिल्डिंग्स के। We will basically, there are so many examples. You can, कुछ fine examples होते हैं, so I have told you certain fine examples. You can see CII building, you can see this solar Indira Paryavaran building, Bhavan building, CII हैदराबाद की है। Similarly, जो Sheraton hotels हैं, ITC के hotels हैं, ITC Maurya and all, they are green hotels. ओके, तो जब आप इंटीरियर्स की बात करते हैं तो यू शुड सी कि कैसे ग्रीन आर्किटेक्चर को एग्जिस्टिंग मौर्य होटल ने, आईटीसी जैसे मौर्य है, दिस मस्ट हैव बीन मेड 50 इयर्स बैक। उस समय की बिल्डिंग अब तोड़ के तो दोबारा ग्रीन बना नहीं सकते, बट दे हैव एडेड प्रैक्टिसेस इन द इंटीरियर्स ओनली, एंड दे हैव क्रिएटेड ग्रीन एनवायरनमेंट। ओके, टेरेस पे लैंडस्केपिंग कर दिया, कुछ ग्रीन वॉल्स बना दी, कुछ लॉबी के अंदर ऐसी स्पेसेस बना दी कि इंडोर प्लांट्स लगा दिए। इंडोर प्लांट्स जो है वो आउटडोर एनवायरनमेंट को इंडोर ले आए हैं, एक तरह से इट इज लाइक जनरेटिंग एन आउटडोर एनवायरनमेंट इन द इनसाइड। ओके, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं, दिस इज द टाइम इज एंडिंग, हम इसको इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आईटीसी मौर्य वालों ने क्या किया है, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपने सारे फिक्सचर्स चेंज करा दिए थे। टॉयलेट्स पूरे रेनोवेट हुए थे, सब में लो फ्लो फिक्सचर्स करा दिए हैं, डुअल सिस्टम्स, डुअल फ्लश सिस्टम्स लग के। दे हैव एक्चुअली कम अप विद टेक्निक्स जिसमें वाटर कंजर्वेशन हुआ है। और उसके बाद इन्होंने अंदर के एनवायरनमेंट में ऐसे इंडोर प्लांट्स लगाए हैं जो बैड ऑर्डर को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई आईटीसी वाले को ग्रीन मिला है इंटीरियर का टैग। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस
हैं, जैसे अगर आपने बहुत ध्यान से कभी ऐसे न्यूज में ही सुना हो, हीरनंदानी गार्डन्स है। हीरनंदानी गार्डन्स जो है वो इट इज अ वेरी, इट जैसे हमारा नेहरू प्लेस समझ लो या कनॉट प्लेस समझ लो, इट इज अ सीबीडी। सीबीडी मींस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर है एक तरह से आपका दिल्ली में। तो सिमिलरली अच्छा। हीरनंदानी गार्डन्स इज इन मुंबई एंड इट इज अ प्लेस विच हैज गॉट 14 टावर्स, ऑफिसेस की हैं, और इसमें पूरा का पूरा ऑफिस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा ग्रीन है। सो हिंदंदानी गार्डन्स आप नेट पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, विप्रो का ऑफिस गुड़गांव में, दैट इज अ ग्रीन बिल्डिंग। उसके बाद कैलकाटा में सॉल्ट लेक सिटी में भी देयर इज वन बाय द नेम ऑफ सॉल्ट लेक ओनली विच इज ग्रीन, टोटली ग्रीन। सो बहुत सारे आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जिन्होंने इंटीरियर्स में रेनोवेट करके, जैसे इंटीरियर में अगर आपने बोर्ड्स लगाने हैं, टिम्बर लगाना है, आपने फर्नीचर बनाना है, तो वो सारा फर्नीचर जो है वो एक तरह से रिफर्बिश्ड रिसाइकल्ड वुड से बनाया है, ताकि वो जो बिल्डिंग है एक तरह से टीक के पेड़ काट काट के नहीं बनाए, मगर आपने उसको रिफर्बिश्ड एंड रिसाइकल्ड वुड से आपने बोर्ड्स बनाए, या बैम्बू मैट से आपने बोर्ड्स क्रिएट करे, या कॉयर से आपने बोर्ड करे। केरला वगैरह में इतना नारियल जो है उसके बाल हैं, उसके नारियल को कंप्रेस करके दे मेड बोर्ड। ओके, बहुत सारे पार्टीशंस बन सकती हैं उससे, बोर्ड्स बन सकते हैं। मॉडुलर फर्नीचर का जितना भी मॉडुलर फर्नीचर है, लाइक किचन बना रहे हैं, बेड्स बना रहे हैं, ऑफिस वर्क स्टेशन बना रहे हैं, ये सारा का सारा आपका रिसाइकल्ड रिफर्बिश्ड वुड से बन सकता है। एंड देन यू कैन लैमिनेट इट, इसको आप विनियर लगा सकते हो, या आप इसको कंप्रेस करके फैक्ट्री में यू कैन गेट फिनिशेस, एन नंबर ऑफ फिनिशेस आउट ऑफ दैट। ओके, तो जब हम ग्रीन इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग को सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स। जैसे ये होल बिल्डिंग, इसमें बहुत सारी ऐसी स्लाइड्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आपकी लुक्स अच्छी आनी चाहिए, इजीली मटेरियल मिलना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, फंक्शनल अच्छा होना चाहिए, ऑपरेशनल होनी चाहिए बिल्डिंग, एंड डेफिनेटली इट शुड बी सस्टेनेबल। ओके, अब सी वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली हमारे को व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज वी हैव टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, we have to improve the water quality, and we have to conserve natural resources। ये हमारा जिस्ट है आज की डेट का। जिस्ट का मतलब ये है कि everybody, especially the designers, they have to move towards a path जिसमें आप कंजर्व करोगे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करोगे, और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमारी इतनी टाइप की जो स्पीशीज हैं, आप उनको उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करोगे, एंड यू विल प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। एक्सक्यूज मी। ठीक है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। एक तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, मींस यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर मटेरियल्स जो बहुत दूर से आना है। आपकी लो स्प्रॉट, देखो एक बिल्डिंग की हमेशा एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है या प्लांट की लाइफ साइकिल है, सिमिलरली आपकी बिल्डिंग की भी लाइफ साइकिल है। सबसे बिल्डिंग एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे उसका स्टार्ट होता है, उसके बाद वो जो बिल्डिंग है फिर वो धीरे धीरे उसकी यू कैन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग होती है, ऑपरेशन होता है, फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, एंड लेटर ऑन आफ्टर 40-50 years द बिल्डिंग स्टार्ट्स डिटीरियोरेटिंग, और हम उसको एक तरह से वी ट्राई टू डिमोलिश इट एंड क्रिएट समथिंग न्यू। सो आपने हमेशा यही क्रिएट करना है, यही आपका होना चाहिए कि जब भी बिल्डिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट till the building dies and demolishes, सो उस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर कहीं पर भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और एक तरह से लोगों की हेल्थ हैजार्ड नहीं क्रिएट करेगा। सो एक तरह से वी शुड वैल्यू एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। ओके, अब इसमें लोकल देखो, लोकल जो मटेरियल्स हैं एक उनको आपको यूज करना है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की अच्छी होगी, एयर क्वालिटी बेटर होगी अगर आप ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, प्लांट ज्यादा क्रिएट करेंगे। आफ्टर ऑल एवरीबॉडी नोज की फोटोसिंथेसिस से दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड दे मेक द एनवायरनमेंट हेल्दी एंड कंफर्टेबल। ओके, एंड जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपको दे गिव यू सो मेनी थिंग्स। प्लांट्स आपको बिसाइड्स गुड एंड फ्रेश एयर आपको वुड देते हैं,
वुड से आप अपने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, आप इमेजिन करो कोई बैट, कोई टेनिस रैकेट, कोई बैडमिंटन रैकेट, ये सारे आपके वुड से बनते हैं। पेपर आपका वुड से जनरेट होता है, वुड पल्प से। ठीक है, आपकी बोट है, जो ट्रांसपोर्टेशन बोट होती है या जो शिप होता है, वो सारा वुड से बनता है। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन का वाटर का मीडियम ही खत्म हो जाएगा अगर वुड नहीं होगी तो। उसके बाद आपको प्लांट्स बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, लाइक हर्ब्स प्रोवाइड करते हैं। पूरा आयुर्वेदा साइंस इज बेस्ड ऑन मेडिसिन ऑन इन प्लांट्स। ओके, आप बेसिकली प्लांट्स को इंस्टेड ऑफ कटिंग देम यू हैव टू ग्रो देम। ठीक है, तो हम जब बिल्डिंग का इंटीरियर करें या एक्सटीरियर करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइट उस तरह से सिलेक्ट करो। ये नहीं कि एक साइट ऐसे सिलेक्ट करी कि जहाँ पे 100 ट्रीज हैं, उसको कट करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप दूसरी एरिया चूज करो जहाँ पे 4 पेड़ काटने पड़े। ओके, सो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, उसकी ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस, उसके बाद ये पूरा बिल्डिंग साइकिल में कहीं पर भी आपको एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। ओके, so these are some that is why the building is called green। और ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप सनलाइट वगैरह को अलाउ कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनका लक्स लेवल रूम के अंदर लाइटिंग लेवल मेंटेन कर रहे हो, वेंटिलेशन क्रिएट कर रहे हो, यू आर मेकिंग ग्रीन टेरेसेस, ग्रीन रूफ क्रिएट कर रहे हो। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज आप रेन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। रेन्यूएबल का मतलब ये है कि आप ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो जिनको बार बार जनरेट किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। खत्म हो गया सोलर पैनल, और आ जाएगा। भाई सनलाइट की कोई कमी, वही सनलाइट आप जितनी बार भी जितनी मर्जी आप स्टोर कर सकते हो। तो फ्री का गिफ्ट आपको गॉड ने दिया है, यू हैव टू यूज दैट। ओके, so these are some concepts of green buildings. People are moving towards green। ठीक है, सस्टेनेबल साइट सिलेक्शन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन मटेरियल एंड रिसोर्सेज में ये सारा आप इंटीरियर में काम आएगा, कि जैसे ही आप बैम्बू फ्लोरिंग यूज कर रहे हैं, वुडन कारपेट यूज कर रहे हैं, आप ऐसे बोर्ड्स यूज करो, आप इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऐसे यूज करो जो आपके एक तरह से एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हो गए हैं टीक वुड वगैरह के या नेचुरल टिम्बर के, जिसको हम एमडीएफ बोलते हैं, माइका है, विनियर्स हैं। ये सारे बहुत सारे ऐसे टाइप के ब्लॉक्स आ गए हैं जिसको आप जैसे एसीसी ब्लॉक्स हैं या फ्लाई ऐश जो एक रॉ मटेरियल है, जो थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, उससे जनरेट करके आप ब्लॉक्स बना सकते हो। उसके बाद आप पेवर्स क्रिएट कर सकते हो, ये सारे मड से क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सीमेंट डाल के यू कैन गिव देम स्ट्रेंथ। सो बेसिकली जब आप एक इंटीरियर डिजाइन करते हो तो उसमें आप ऐसे मटेरियल्स यूज करो अपने इंटीरियर्स के अंदर जो एक तरह से ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स हो टू नेचुरल रिसोर्सेज, और एक तरह से लोकली अवेलेबल हो, और आपके एक तरह से यू कैन से कि वो आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, यू कैन सी द स्लाइड, यू कैन रीड इट लेटर ऑन। वाटर एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लिंक। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करेंगे आफ्टर 2 मिनट्स। वाटर एफिशिएंसी का मतलब यही है कि जब आप लैंडस्केप कर रहे हो अपने गार्डन को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वहाँ के लोकल नेटिव प्लांट्स एंड ट्रीज यूज हों जो कंज्यूम करें कम वाटर। अगर एक आप कहो कि मैं एक एप्पल का पेड़ यहाँ राजस्थान में लगाएंगे या दिल्ली में लगाएंगे, इट माइट नॉट ग्रो, बिकॉज एक तो क्लाइमेट का इफेक्ट है। एंड इवन इफ यू कैन प्रोवाइड आर्टिफिशियल क्लाइमेट, बट उसको जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हिल्स में ही पूरी हो सकती है उसकी। Okay, so you should not use those plants there. Kikar hai, shisham ka hai, all these babool, kikar and all these trees do not need much water. That is a native plant of Rajasthan. ठीक है, वो plants आप वहां grow करो। कैक्टस है, कैक्टस की एक एबिलिटी है टू स्टोर वाटर इन द थॉर्न्स, वो वहां ग्रो होता है। ठीक है, तो आप एक तरह से क्लाइमेट के हिसाब से अपने इंडोर प्लांट्स जो चूज करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडोर एरियाज में क्या चूज कर रहे हो जो आपके एनवायरनमेंट से जेल करे, क्लाइमेट के साथ जेल करेगा। ठीक है, दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड। रेन वाटर